افغانستان کے اس پروجیکٹ کو دیکھ کر یقیناً آپ کی بھی آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ اور اسی پروجیکٹ سے افغانستان اپنی قسمت کو بدلنے والا ہے اور اب اس کو ایشیا کا مضبوط اور پاورفل کنٹری بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ امریکنز اور رشینز جو کہ اپنی بہادری کے قصے سناتے تھکتے نہیں تھے، لیکن جب ان کا واسطہ اس ملک کی قوم کے ساتھ پڑا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے ان پڑھ اور سادہ سے دکھنے والے ان لوگوں نے ان کی ناک سے لکیریں کھنچوائی اور ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر اپنی ملک کی حدود سے باہر نکالا۔ اس ملک کو اللہ پاک نے بے انتہا خوبصورتی سے نوازا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں اپنے پیارے پیارے نئے نقش اور دل کو چیر کر رکھ دینے والی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اور صرف یہاں کا کھانا دیکھ کر آپ گھر بیٹھے ہی اپنی انگلیوں کو چاٹنے لگ جاؤ گے۔ اس کے علاوہ افغانی پاکستانیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہاں کی زمین میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کو ڈھونڈنے کے لیے دنیا پاگل بنی پھرتی ہے، لیکن وہ قیمتی چیز صرف ایک ہی ملک کے پاس ہے، وہ ہے افغانستان۔ آخر وہ کون سی چیز ہے؟ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان کا کیسا حال ہے، یہاں کا قانون کیسا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں طلحہ انفو ٹی وی کی آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ ہائے تو دوستو، میرا نام طلحہ سراج ہے اور آپ کے اپنے چینل طلحہ انفو ٹی وی پر موجود ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اب اسے لائک کر دیں اور آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ دوستو، اس کنٹری کا پورا نام اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ 1973 سے لے کر آج تک افغانستان نے اپنے پرچم کو 4 دفعہ بدلا ہے اور اب ان کا پرچم کچھ ایسا ہے۔ اس ملک کی سرحدیں پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبیکستان اور چائنا سے جا کر لگتی ہیں اور اس وقت افغانستان کا ٹوٹل ایریا 6,47,500 مربع کلومیٹر ہے اور یہ افغانستان کو دنیا کا 41واں سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ اور اس وقت افغانستان کی کل آبادی تقریباً 40 ملین یعنی کہ 4 کروڑ ہے۔ پاپولیشن کے 55 سے 60% لوگ رورل یعنی کہ دیہاتوں میں رہ رہے ہیں اور باقی کے 40% لوگ افغانستان کے شہروں میں رہتے ہیں۔ اور آبادی میں مردوں کی تعداد عورتوں سے بہت زیادہ ہے۔ ہیبت اللہ اخونزادہ طالبان کے امیر ہیں اور جب 2021 میں افغانستان امریکہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا تو انہوں نے افغانستان پر اپنی حکومت سنبھالی تھی۔ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی کہ اس کی سرحدیں چاروں طرف سے سمندر میں گھری ہوئی ہیں اور اس کے پاس کوئی بھی ساحلی حدود نہیں ہے۔ اور اسی افغانستان کا کیپٹل ہے کابل سٹی اور اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ شہر مختلف ثقافتوں اور سلطنتوں کا مرکز رہا ہے اور موسم گرما میں کابل کا درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ سے 40 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور یہ موسم خشک ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہاں پر اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ اس کا ٹیمپریچر -0 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور یہاں پر برف باری بھی ہوتی ہے۔ اس شہر میں سیاحوں کے آ کر تو مزے ہی لگ جاتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ کابل کے ارد گرد بہت سارے پہاڑ ہیں جو کہ سیاحوں کے لیے قدرتی دلکشی رکھتے ہیں اور یہ ہائیکنگ کے لیے تو بہترین ہے۔ اور کابل سے تقریباً 25 کلومیٹر دور پگمان وادی ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وادی کتنی زیادہ حسین اور پیاری ہے۔ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن بہت ہی زیادہ سادہ ہے اور یہاں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ گندم، چاول، مکئی، کپاس اور میٹھے پھل جیسا کہ سیب اور انار کی کاشت کرتے ہیں، جس سے اب ان کی ملک کی معیشت بھی مستحکم سے مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا افیم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ افغانستان دنیا کی تقریباً 80% افیم پیدا کرتا ہے اور یہ افیم دنیا بھر میں ہیروئن بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ عالمی منشیات کی مارکیٹ میں بھی سپلائی کیا جاتا ہے، جس سے افغانستان کی معیشت کو غیر قانونی طریقے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور یہ ایک مسلمان ملک ہے جس میں تقریباً 85% سے 90% سنی مسلمان ہیں۔ اس کے بعد یہاں کی آبادی میں سے تقریباً 10 سے 15% حصہ شیعہ کمیونٹی کا ہے اور یہ زیادہ تر ہزارہ قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پر پشتو زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے جو کہ
अफगानिस्तान के जनूबी और मशरकी हिस्सों में बहुत बड़ी तादाद में बोली जाती है और पश्तो ज़बान ही अफगानिस्तान की कौमी ज़बान है। इसके अलावा यहाँ पर दरी ज़बान भी बोली जाती है। दरी दरअसल फारसी ज़बान की एक किस्म है जो कि अफगानिस्तान के शमाली और मगरबी हिस्सों में बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बलोची, पाशाई, तर्कमानी, ताजिकी और उज़्बेकी ज़बान का भी यूज काफी ज्यादा किया जाता है। अफगानिस्तान की करेंसी को अफगान अफगानी कहते हैं और एक अफगानी पाकिस्तान के 4 रुपए बनते हैं और एक अफगानी हिंदुस्तानी 1.26 रुपए बनते हैं। कॉपर के अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा ज़खायर पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिथियम, कोयला, निकेल, नमक, यूरेनियम और गोल्ड के भी बहुत ज्यादा ज़खायर हैं और इससे अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक ने अफगानिस्तान को कितनी ज्यादा नेमतों से नवाज रखा है। और यही वजह है कि अमेरिका और रशिया ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया ताकि वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर सके। और तारीख गवाह है कि इन दोनों मुल्कों ने दुनिया की सबसे महंगी तरीन जंगें लड़ी, लेकिन फिर भी वो अफगानियों और पठानों के जज्बे को शिकस्त ना दे सके। और 30 अगस्त 2021 को अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग का आखिरी दिन था और इसी रोज काबुल से आखिरी अमेरिकी फौजी भी निकल गए और इसके साथ ही अफगानिस्तान में 20 सालों से जारी जंग का खात्मा हो गया। और दोस्तों, आपने अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो सुन रखा होगा। यहाँ के फ्रूट्स दुनिया भर में मशहूर है और अफगानिस्तान इन्हीं ड्राई फ्रूट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मोटा पैसा छापता है। और अफगानिस्तान चाइना के साथ मिलकर दी कोस्ट डीपा कनाल का एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाने जा रहा है। ये मंसूबा अफगानिस्तान के शमाली इलाकों में एक बहुत बड़े हाइड्रो पावर डैम के तौर पर तामीर हो रहा है, जिससे न सिर्फ अफगानिस्तान को तवानाई हासिल होगी बल्कि इससे अफगानिस्तान को ज़राई जमीनों की आबपाशी में भी बहुत ज्यादा मदद हासिल होगी। और इसके अलावा भी अफगानिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपने मुल्क में मादनियात की खोज करवा रहा है और चीन ने अफगानिस्तान में मौजूद इन मादनियात की खोज के लिए एक बहुत बड़ी सरमायाकारी की है। और इस सरमायाकारी का फायदा चीन को कुछ इस तरीके से होगा कि इन मादनियात को निकाल कर इनको आलमी मार्केट में बेचा जाएगा, जिसका बहुत बड़ा फायदा अफगानिस्तान के साथ साथ चाइना को भी होगा। तालिबान की हुकूमत में आते ही यहाँ पर इस्लामी कानून को नाफिज किया गया है। जो बंदा यहाँ पर चोरी या जिना के इस जुर्म में मुलविस होता है, इनके लिए यहाँ पर सख्त सजाएं रखी गई हैं, जिनमें इनके हाथ काटना, इनको जिस्मानी सजाएं देना और यहाँ तक कि इनको नामर्द कर देना भी शामिल है। यहाँ पर मौसीकी, तफरीही प्रोग्राम्स और टेलीविजन पर भी पाबंदी है। इस्लाम में मौसीकी को हराम समझा जाता है, इसीलिए यहाँ पर अक्सर परफॉर्मेंस या कॉन्सर्ट्स पर सख्त कार्रवाई की जाती है। तालिबान ने मर्दों के लिए भी कुछ कानून नाफिज किए हैं, जिनमें नमाज का पाबंदी से एहतमाम करना और लिबास पर खास तवज्जो देना शामिल है। यहाँ पर तालिबान की पुलिस है जो कि अवामी जगहों पर सरगर्म रहती है और लोगों पर मुसलसल नजर रखती है। ये पुलिस बाजार, सड़कों और अवामी मकामात पर लोगों के अमाल का मुआयना करती रहती है ताकि वो इस बात को यकीनी बना सकेंगे कि लोग वाकई में इस्लाम के कवानीन की पैरवी कर रहे हैं या नहीं। और ये शरीयत के खिलाफ जाने वाले अफराद के खिलाफ फौरन एक्शन लेते हैं। और अगर हम अफगानिस्तान के खानों पर नजर डालें तो अफगानिस्तान के लोगों को खाने का बेहद शौक है और ये गोश्त खोर है। ये दुम्बे का गोश्त काफी ज्यादा शौक से खाते हैं। और इसके अलावा ये अफगानी रोश, अफगानी शिनवारी और इसके साथ साथ चिकन और मटन भी बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। ये कौम दरअसल एक शुक्र करने वाली कौम है और ये थोड़े में ही खुश रहना और थोड़े में ही गुजारा करना जानती है। दोस्तों, आप अक्सर जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि अफगानी पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा अपना दुश्मन समझते हैं और वो पाकिस्तानियों से बेहद नफरत करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पिछले वक्त में अमेरिका को अपनी पाकिस्तान की जमीन अफगानिस्तान और अफगानियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दी थी, जिससे अमेरिका के फौजी पाकिस्तान में बैठे हुए अफगानिस्तान के इलाकों और अफगानिस्तान के लोगों पर एयर स्ट्राइक्स करते थे। और अब ये बात आप भी बाखूबी जान चुके होंगे कि कुछ दोगले और मुल्क दोस्त दुश्मन सियासतदानों के अपनी मफादात, अपनी जात और कुछ पैसे के लिए किए जाने वाले अब ये गलत फैसले ने कैसे अफगानियों के दिलों में पाकिस्तान के लिए जहर घोल दिया है। पढ़ाई का निजाम अब ना होने के बराबर है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर माजी में रही जाने वाली जंगों को भी बताया जाता है। अफगानिस्तान में तकरीबन 20,000 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे स्कूल्स जंग और तनाजात की वजह से बंद पड़े हुए हैं। इसके अलावा पूरे मुल्क में 170 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं और ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ज्यादातर काबिल और देगर बड़े बड़े शहरों जैसा कि हर्रात, मजार शरीफ और कंधार में पाई जाती हैं। अगर आप अफगानिस्तान में जाते हैं तो इन जगहों को विजिट न करना आपकी जिंदगी की सबसे
सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बामियान की वादियां दुनिया भर में मशहूर हैं क्योंकि यहाँ पर आपको 6वीं सदी में तराशे गए मुजस्मे देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा ये वादी अपने कुदरती खूबसूरती और पुरसकून माहौल के लिए बहुत ही ज्यादा फिट और जबरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पर बंद अमीर नेशनल पार्क है जो कि नीले पानी की झीलों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। ये जगह बामियान वादी के करीब है और ये कुदरती हुस्न का शानदार शाहकार है। अफगानिस्तान के शहर हरात में आपको तारीखी मसाजिद देखने को मिल जाएंगी और इन मसाजिद की फन तामीर को देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और यहाँ पर सुल्तान महमूद गजनवी की बादशाहत का एक मरकज भी था जिसको आज दुनिया गजनी के नाम से जानती है। गजनी दरअसल अफगानिस्तान का एक शहर है और ये शहर यहाँ के मीनार और कदीम इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। और अफगानिस्तान की जमीन का तकरीबन 75% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। अगर आप एक नेचर लवर हैं तो अफगानिस्तान आपके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। पिछले कई सालों में जंगों में घिरे जाने की वजह से अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी ये पासपोर्ट आपको 27 ममालिक में बगैर वीजे के सफर की इजाजत देता है। +93 यहाँ का डायलिंग कोड है। स्नो लेपर्ड यहाँ का कौमी जानवर है और अनार अफगानिस्तान का कौमी फल है। और स्पोर्ट्स में बुजुकशी अफगानिस्तान का कौमी खेल है। इस खेल में दरअसल आपको एक घोड़ा दिया जाता है और आपके पास एक बकरी होती है और घोड़े पर सवार होकर इस बकरी को आपने एक होल में डालना होता है। अफगानी लोग इस खेल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और वो इसे काफी ज्यादा शौक से खेलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल क्रिकेट है और क्रिकेट को भी यहाँ के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तालिबान के आने से पहले तो यहाँ के लोग काफी ज्यादा धूमधाम से शादी करते थे। पाकिस्तानियों की तरह यहाँ भी लड़कियों का खुले बालों में बाहर निकलना, ढोल धमक्के पर नाचना एक आम बात थी, लेकिन तालिबान के आने के बाद यहाँ पर माहौल बदल गया है। इस्लाम के मुताबिक ही आपको यहाँ पर निकाह करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अस्ताद के मुताबिक वलीमा करना होगा। बाकी लड़कियों का खुले बालों में बाहर निकलना, नाचना गाना यहाँ पर सख्त ममनू है और ऐसा करने पर आपको यहाँ पर सख्त से सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी तलहा इन्फो टीवी की अफगानिस्तान के मुल्क के बारे में एक छोटी सी वीडियो। दोस्तों अफगानिस्तान मुल्क आपको कैसा लगता है? अफगानिस्तान के लोगों के बारे में आपकी क्या सोच है? आपने ये मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और क्या आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो यार अब इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें और फिर आप भी यूं ही हमें प्यार दिखाते रहें।